everyone, welcome back to Pharmacology by MKT. Yeah, that's me, Dr. Mangesh Kumar Tripathi. So in today's lecture, we'll start with a very important topic in the autocoids, and that is called as the gout. ठीक है, क्या है टॉपिक का नाम guys? Gout. Okay, so gout क्या होता है? Now gout is nothing but it is a condition. It is a condition which is characterized by increase in the serum uric acid level. क्या होता है? Yes, it is a condition in which there is what guys? There is increased serum uric acid level. Now everyone should know what is the normal uric acid level first. तो सबको पता पहले होना चाहिए normal serum uric acid कितना होता है. And the normal serum uric acid is, we can say it is 3.6 to 7.2 milligram per deciliter. कितना होता है guys? It is 3.6 to 7.2 milligram per deciliter. So ये है normal. अगर इससे ऊपर जा रहा है, so there are condition like acute gout and chronic gout. ठीक है? So gout is nothing but it is a condition in which there is increased serum uric acid. Okay, now the first type of gout जो हम लोग देखेंगे, the first type is acute gout. क्या है guys? It is acute gout. ठीक है? Now acute gout क्या होता है guys? Now you know what is gout. It is increased serum uric acid level. ठीक है? अब ध्यान से सुनना. In acute gout what happens? The uric acid which is increased. So increased uric acid, it gets deposited in the joints. ठीक है? Now since it is insoluble, since it's insoluble, it gets precipitated. ठीक है ना? उसके वजह से क्या होता है guys? Now uric acid कहां चला गया guys? In the joint it has got deposited. Now the synovial fluid in the joint guys, the synovial fluid in the joint. Now since क्या अंदर आ चुका है synovial fluid के अगल बगल, there is uric acid. ठीक है? अब synovial fluid क्या करेगा? It secretes a protein called as glycoprotein. क्या होता है guys? Glycoprotein. It secretes a protein called as glycoprotein. Now this glycoprotein guys ये क्या करता है पता है? It attracts the neutrophils. किसको अट्रैक्ट करता है? Neutrophils. Now आपको समझ गया guys, अगर यूरिक एसिड जॉइंट्स में जाके डिपॉजिट हो गया, ठीक है, अब साइनोवियल फ्लूइड जो जॉइंट्स में है ना, what it will do, it will act against that uric acid thinking that it is a foreign substance, so it will secrete a glycoprotein. Now glycoprotein secrete हुआ, now it has got signaled or it has given the signal to the neutrophils that अरे there is a foreign substance in the joint and the synovial fluid has secreted the glycoprotein. Now we have to go there. Now this neutrophil will go at the site of the glycoprotein जहां पे हमारा क्या है, यूरिक एसिड डिपॉजिट हो गया है जॉइंट्स में. अब वहां पे क्या होने लगेगा? In the joints what will happen? There will be inflammation because of the neutrophils who are come at the site of joint uric acid deposition in the joint. वहां जाके वो they will cause the inflammation in the form of pain and swelling. In the form of guys pain and swelling. Understood? So acute gout we can say guys is characterized by pain and swelling in the joint. And the most common joint involved is guys, the most common joint involved in acute gout is, it is first metacarpophalangeal joint, that is the greater toe. हमारा मतलब थंब का, ठीक है? The first metacarpophalangeal joint of the greater toe is the most common joint involved in acute gout. So acute gout is characterized by guys pain and swelling. क्यों हुआ है pain and swelling? Because the neutrophil has come at the site of
यूरिक एसिड डिपोजिशन। क्यों हो न्यूट्रोफिल आए? बिकॉज हमारे साइनोवल फ्लूइड ने यस दे हैव सीक्रेटेड ग्लाइकोप्रोटीन, उसके वजह से हमारे जॉइंट में क्या हो गया है? इन्फ्लेमेशन, जिसके वजह से पेन एंड स्वेलिंग हुआ है। सो हम लोग बोल सकते हैं ना हमारा मेन ट्रीटमेंट क्या रहेगा एक्यूट गाउट का गाइस? अगर मुझे मेन ट्रीटमेंट देना है, हमारा मेन मोटो क्या रहेगा? मेन ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट इज व्हाट? टू डिक्रीज पेन एंड इन्फ्लेमेशन। आया ना? गुड। सो पेन और इन्फ्लेमेशन कम करना ही हमारे एक्यूट गाउट का मेन ट्रीटमेंट होगा। समझ गए इतना? अंडरस्टूड? ओके, तो अब हम लोग देखेंगे क्या ट्रीटमेंट है एक्यूट गाउट के। सो ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट पे हम लोग गाइस आ जाते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट, हमारा मेन मोटो क्या है या मेन ट्रीटमेंट क्या है गाउट का, एक्यूट गाउट का? सर देयर इज पेन एंड स्वेलिंग, तो हम लोग पेन एंड स्वेलिंग को रिड्यूस करेंगे। ठीक है, सो द ड्रग्स व्हिच आर यूज्ड इज, जस्ट रिमेंबर द निमोनिक, नाइस कोल्ड compression, nice cold compression. तो हर word in this is a drug, so NCC, so it is nice cold compression. So N stands for guys, N stands for it is NSAIDs, C stands for guys it is corticosteroids, and last C is colchicine, C. So these are the main three drugs guys for acute gout. अब हम लोग अगर NSAIDs पे आए, you know NSAID is, अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा, it is a non-steroidal anti-inflammatory drug. ठीक है, so we can use, it is an anti-inflammatory drug, पेन एंड स्वेलिंग को कम करेगा। so हम लोग कौन से NSAID यूज कर सकते हैं guys? yes, we can use all NSAID, can use all NSAIDs। ऐसा कोई एक्सेप्शन है क्या गाइस कि ये NSAID यूज नहीं कर सकते? यस, देयर आर टू एक्सेप्शन गाइस। कौन बताएगा? यस, करेक्ट, इट इज वेरी गुड। एग्जांपल इज एस्पिरिन एंड पैरासिटामोल, एक्सेप्ट एस्पिरिन एंड पैरासिटामोल गाइस। क्यों यूज नहीं कर सकते एस्पिरिन? सर एस्पिरिन तो खुद ही यूरिक एसिड क्यों क्या करता है? ब्लड में बढ़ा देता है, so it will cause hyperuricemia, so aspirin should not be given in acute gout। और पैरासिटामोल सर आप ही ने बताया था कि does not have एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, सो पैरासिटामोल का भी पत्ता गायब, सो वो भी यूज नहीं सकता है। एक्सेप्ट दिस टू वी कैन यूज एनी ऑफ द NSAIDs फॉर व्हाट? फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट। ठीक है, ओके। अब समझो पेशेंट का एक्यूट मतलब आपने NSAIDs दिया और तो भी पेन एंड स्वेलिंग नहीं आराम हुआ, सो अगर NSAID से आराम नहीं होगा सो आप क्या दोगे? नेक्स्ट ट्रीटमेंट में आप आ जाओगे, दैट इज स्टेरॉइड्स दोगे। क्या दोगे गाइस? यस, यू विल गिव स्टेरॉइड्स। अब कौन से स्टेरॉइड्स दोगे गाइस? जस्ट रिमेंबर द निमोनिक। देखो पहले नीट के पहले यूजी में PMT भी होता था, करेक्ट? So it is PMT. So the drug is PMT. What is P? It is prednisone, prednisolone. So they all are guys steroids. Prednisolone, methylprednisolone, and T stands for triamcinolone. So ये हमारे मेन ड्रग्स हैं, दे आर द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो हम लोग कहां यूज करेंगे गाइस? इन एक्यूट गाउट इफ द पेशेंट हैज नॉट गॉट द रिलीफ फ्रॉम NSAIDs। ठीक है, अब प्रेडनिसोन और प्रेडनिसोलोन गाइस, prednisone or prednisolone is mainly oral and the dose अगर हम देखें it is 40 to 60 mg per day। ठीक है, it is oral dose। Now methylprednisolone guys, it is mainly intramuscular, 30 to 40 milligram once a day। And the last is triamcinolone guys, intra-articular मतलब डायरेक्ट जॉइंट पे दिया जाएगा, और इंट्रालीजनल, कौन सा लीजनल? लीजनल मतलब जॉइंट पे, इंट्रालीजनल, एंड द डोज इज 10 to 30 milligram वन। इंट्राआर्टिकुलर, इंट्रालीजनल, ट्रायमसिलोन 10 to 30 milligram।
ठीक है गाइस। अब याद रखो गाइस, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वी कैन गिव ओरल आल्सो, वी कैन गिव इंजेक्टेबल आल्सो, ठीक है। बट ओरल आर लॉन्ग टर्म, अगर ओरल देंगे हम लोग स्टेरॉइड देंगे तो क्या हो जाता है, हाइपर, क्या हो सकता है, अगर ज्यादा स्टेरॉइड्स लॉन्ग टर्म दे दिया, इट कैन लीड टू, यू नो, इट कॉजेस कुशिंग्स डिसीज, ठीक है। सो ओरल वी शुड अवॉइड, लॉन्ग टर्म अगर देना है तो इसलिए हम लोग क्या देंगे, मेनली विल गिव इंट्रालीजनल इंजेक्शन। कौन सा, डायरेक्टली जॉइंट में हम दे सकते हैं। सो इंट्रालीजनल इंजेक्शंस आर प्रेफर्ड कंपेयर टू दी ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अंडरस्टूड? ओके, अब समझो गाइस, कॉर्टिकोस्टेरॉइड से भी रिलीफ नहीं मिला, सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड से भी अगर रिलीफ नहीं मिला, सो रिमेंबर द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग of acute gout is the colchicine. So please remember, it is the most effective drug. It is the most effective drug for acute gout. It is not the drug of choice. Drug of choice for acute gout is mainly the NSAIDs. We have NSAIDs and we have steroids. But this is not the drug of choice because it causes adverse effects also. ठीक है, it causes major adverse effect. Hence, it is not the drug of choice, but it is the most effective drug for what? For acute gout. ठीक है, and the dose is 0.5 milligram. ठीक है, understood guys? अब ये क्यों most effective है, कैसे most effective होता है, देखते हैं। ठीक है, हमने देखा था, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर जॉइंट्स, दिस इज दी बोन जॉइंट्स एंड दिस इज साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। नाउ यहां पे क्या है, हमारा यूरिक एसिड है, ठीक है, ठीक है, ये हमारा यूरिक एसिड है। नाउ दिस यूरिक एसिड इज प्रेजेंट वेयर, इन द साइनोवियल फ्लूइड, यस, साइनोवियल कैविटी, और ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। Okay, this is uric acid. Now what this uric acid will do? Now this what this synovial fluid will do, guys? Yes, synovial fluid क्या secrete करेगा? Because there are what? Uric acid crystal. So it will secrete a protein against it, and that is called glycoprotein. Yes or no? It will secrete glycoprotein. Now this glycoprotein को भाई मतलब now this glycoprotein is secreted in response to what? In response to the uric acid present in the joint. Now we have the soldier cell, that is the WBC. Now the WBC have very important cell that is called as neutrophils. So neutrophils will be attracted towards the glycoprotein of synovial fluid. ठीक है, सो न्यूट्रोफिल अगर इधर आ गए ग्लाइकोप्रोटीन में, मतलब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन चालू हो जाएगा एंड देयर विल बी स्वेलिंग एंड पेन। ये हमने एक्यूट गाउट में देखा था। अंडरस्टूड? अब ध्यान से सुनना, हमारा जो कॉल्चिसिन है गाइस, वो क्या करता है, नाउ दिस कॉल्चिसिन वो क्या करेगा, इट विल इनहिबिट द ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रीशन फ्रॉम साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। सो इट विल इनहिबिट the glycoprotein secretion from, guys, कहां से हो रहा है glycoprotein? From synovial fluid. Very important thing. Second, अब भाई अगर ग्लाइकोप्रोटीन ही नहीं सिक्रीट होगा तो क्या नहीं आएगा, न्यूट्रोफिल्स। सो इट विल also inhibit the migration of neutrophils, or we can say the granulocyte. We know it is a granulocyte, WBC or neutrophil. Enjoy. तो अगर यही नहीं होगा so inflammation होगा ही नहीं. You understood? So हमारा main mechanism of colchicine is that it inhibits the glycoprotein secretion from synovial fluid and also it will inhibit the migration of granulocyte in the joints. ठीक है, जिसके वजह से it is the most effective drug for acute gout because वो main root को ही हटा दे रहा है. It is the neutrophil जो आ रहा है जिसके वजह से inflammation हो रहा है. तो अगर यही दोनों ही inhibit हो गए, so what? There will be no swelling, no pain, and there will be no patients also in acute gout. Correct? ठीक? But since it has some major adverse effects, it is not a drug of choice. But still, it is the most
इफेक्टिव ड्रग। तो अगर एमसीक्यू में आता है क्वेश्चन द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर एक्यूट गाउट, सो प्लीज मार्क द आंसर एज कॉल्चिसिन, नॉट योर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एनसेड्स। बट अगर ड्रग ऑफ चॉइस आता है देन मार्क एज फर्स्ट एनसेड्स, देन वी हैव कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक, ओके, चलो। तो गाइस कॉल्चिसिन हम लोग देख रहे हैं, तो कॉल्चिसिन के बारे में, कॉल्चिसिन के हमें थोड़े यूजेस और भी पता होनी चाहिए। और एडवर्स इफेक्ट हमने बोला सर वो मोस्ट इफेक्टिव है बट ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, बिकॉज आप ही ने बोला इट हैज मेजर एडवर्स इफेक्ट। तो क्या है एडवर्स इफेक्ट वो भी देखेंगे। अब इंडिकेशन, सो जस्ट रिमेंबर द डेमोनिक गोट। नाउ जी स्टैंड्स फॉर गाउट, व्हिच गाउट गाइस? यस, एक्यूट गाउट। O stands for osteoarthritis because there is inflammation. A stands for auto-inflammatory condition. Auto-inflammatory condition like acute Mediterranean fever. ठीक है? And the last is tumor lysis syndrome. What is this? I will let you know. Okay guys, so these are the four main indication. Remember my mnemonic GOAT. G stands for gout. Yes, it is the most effective drug for gout. Yes, it can also be given in osteoarthritis because it is anti-inflammatory. Third is auto-inflammatory condition. There is a fever type of auto-inflammatory condition called acute Mediterranean fever, and in this condition, that is in acute Mediterranean fever, it is a drug of choice. Please remember it is a drug of choice. And the last is tumor lysis syndrome. Now what is tumor lysis syndrome guys? Now if there is tumor, ठीक है, when we give the treatment, ठीक है, what happens? The tumor will lyse. Now the tumor contains what? The protein, and you know uric acid is a breakdown product of proteins, so more of uric acid will come, so more they will go in the joints, so more inflammation will occur. So what will be the anti-inflammatory drug? Yes, we can give colchicine as anti-inflammatory. So these are the four major indications of colchicine. अब हम लोग आ जाते हैं major, that is adverse effects. कौन सा? Yes, adverse effect of colchicine. So remember just बादाम खाते हैं? Yes. So B stands for, just remember, bone marrow suppression. It causes bone marrow suppression. A stands for alopecia. Yes. D stands for diarrhea. A stands for abdominal pain, which can lead to nausea, vomiting. Just remember. And then M stands for all these are the serious adverse effects, we can say bone marrow suppression, myopathy. ठीक है, so these are the serious adverse effects of colchicine. Hence colchicine is not the drug of choice for acute gout. ठीक है, understood? So colchicine हमने देख लिया, indication कैसे निमोनिक है? Yes, goat. और एडवर्स इफेक्ट का क्या निमोनिक है गाइस? यस, बादाम, बोन मैरो सप्रेशन, एलोपेशिया, डायरिया, एब्डोमिनल पेन एंड मायोपैथी। ठीक है, दैट इज मसल पेन। ओके, ठीक है गाइस। तो हम लोग ने एक्यूट गाउट देख लिया। एक्यूट गाउट का मेन ट्रीटमेंट क्या है गाइस? यस, टू डिक्रीज द पेन एंड इन्फ्लेमेशन कितने ड्रग हैं? 3, नाइस, कोल्ड कंप्रेशन एंड फॉर एनसेड्स, C for corticosteroid, and the most effective drug is third, that is colchicine. ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट एंड द लास्ट गाउट के टाइप पे, दैट इज द क्रोनिक गाउट। कौन सा गाउट गाइस? क्रोनिक। ठीक है, क्रोनिक गाउट गाइस क्या होता है? इन क्रोनिक गाउट व्हाट हैपेंस, या तो वो गाउट है मतलब देयर इज इंक्रीज सीरम यूरिक एसिड। अब दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है एक्यूट और क्रोनिक में? सर इन एक्यूट गाउट द यूरिक एसिड व्हिच हैज increased in the serum uric in the blood, it will go directly in the joint. वहां पे joint permeability रहती है और जाके वो डिपॉजिट हो जाते हैं। फिर वहां पे जो साइनल फ्लूइड होता है वो क्या सिक्रेट करता है? ग्लाइकोप्रोटीन, जो किसको अट्रैक्ट करता है? न्यूट्रोफिल, और वहां इन्फ्लेमेशन होता है, पेन स्वेलिंग होती है। ठीक है, क्रोनिक गाउट में क्या होता है गाइस? In chronic gout, the uric acid does not go
in the joints. ठीक है, does not go in the joint, मतलब वहां पेन और स्वेलिंग क्या होगी कि नहीं होगी? यस, नहीं होगी, बिकॉज जॉइंट्स में ही नहीं गए. अगर जॉइंट में ही नहीं गए तो न्यूट्रोफिल आएंगे ही नहीं, न्यूट्रोफिल नहीं आएंगे तो इन्फ्लेमेशन नहीं होगा. ठीक है, इट इज इंक्रीज इन ब्लड, सो ब्लड यूरिक एसिड इज इंक्रीज्ड. ठीक है, सो ब्लड यूरिक एसिड इज इंक्रीज्ड, देयर इज नो सिम्टम, मतलब यूरिक एसिड कहां नहीं गया? जॉइंट्स में नहीं गया, ओनली ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ गया. तो अगर भाई जॉइंट्स है, सिम्टम ही नहीं है, तो क्यों ट्रीट करना है? बट यस, आगे जाके इन फ्यूचर दिस यूरिक एसिड कैन गो इन द जॉइंट एंड इट विल कॉज सिम्टम. यस और नो? समझ रहे हो? तो हमारा मेन ट्रीटमेंट क्या होगा क्रोनिक गाउट का? भाई यूरिक एसिड को हम जॉइंट में ही नहीं जाने दे, मतलब ब्लड में ही क्या कर दे? यूरिक एसिड के लेवल को कम कर दे. यस, यू आर करेक्ट. सो हमारा मेन एम ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक गाउट क्या होगा? एम ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक गाउट गाइस, यस, टू डिक्रीज सीरम यूरिक एसिड. गाइस कैसे? सीरम यूरिक एसिड. अंडरस्टूड? तो ये हमारा मेन ट्रीटमेंट होगा यूरिक एसिड का. ठीक है, अब हमको अगर डिक्रीज करना है यूरिक एसिड को सीरम में, तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई यूरिक एसिड फॉर्म कैसे हुआ. अंडरस्टूड? तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, इट इज फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड एंड हाउ इट इज मेटाबोलाइज्ड. ठीक, ओके. So guys, we know purine. The breakdown product of purine is we have the uric acid, so it is a protein. So purine is the protein. Now it will break down into hypoxanthine and xanthine. ठीक है? Now this xanthine in the liver, this all will occur in liver. Now in liver there is an enzyme called xanthine oxidase. Guys, कौन सा enzyme है guys? Yes, we have xanthine oxidase. So this xanthine, in the presence of xanthine oxidase in liver, it will form uric acid. क्या form करेगा? Uric acid. समझ रहे हो guys? So xanthine undergo मतलब through the enzyme xanthine oxidase, it will form uric acid. फॉर्म हो गया है. ठीक है, अब ध्यान से सुनना. अब ये यूरिक एसिड का ना क्या क्या कर सकते हैं इस यूरिक एसिड के साथ? ठीक है गाइस, पहला चीज कर सकते हैं कि हम लोग यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म बढ़ा दें. सो यूरिक एसिड को और लीस्ट हार्मफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दें और उसको एक्सक्रीट कर दें. ठीक है, सो in the presence of enzyme called uric acid oxidase, ध्यान से सुनो, it gets converted into the least toxic form and it is called allantoin. ध्यान से सुनना. But in the human being, we don't have this enzyme guys. We don't have this enzyme जो किसमें कन्वर्ट करते हैं यूरिक एसिड को? allantoin. ठीक है, तो ये हमारा हट गया ऑप्शन. Now in the human being what happens? हम लोग क्या करते हैं? It increases the excretion of uric acid in the urine. We can excrete or we can increase excretion of uric acid in urine. ठीक है, कैसे करते हैं गाइस? अब ध्यान से सुनना. Now in the kidney, ध्यान से सुनो. Now we have a transporter in mainly DCT. Now this transporter is called organic anion transport protein. Organic anion transport protein. ठीक है, OATP, also called as uric acid transporter 1. It is UAT1. ठीक है, so the distal convoluted tubule and the collecting tubule of kidney, we have a transporter called as OATP, that is organic anion transport protein and uric acid transport protein. Now what happens normally guys, कि हमारा जो uric acid है अगर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में चला जाता है, फिल्ट्रेशन it will go in the PCT, DCT, और DCT में क्या होगा? There is a transporter called as OATP. Normally देखो ट्यूबुलर सेक्रेशन में क्या होता है?
जो सब्सटेंस होते हैं हार्मफुल सब्सटेंस उसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है, वो ब्लड से मतलब ब्लड से वापस एब्जॉर्ब करके इट इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। बट हमारा OATP जो है ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन वो यूरिक एसिड के साथ उल्टा करता है। यूरिक एसिड को नॉर्मली क्या होना चाहिए, यूरिन में सिक्रीट कर देना चाहिए, बट वो क्या करता है, it will absorb, it will take back the uric acid from the filtrate back into the blood, understood? ये नॉर्मली वो करता है, that is through OATP। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग OATP को क्या कर देंगे, हमें क्या करना है, यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करवाना है यूरिन में, तो we will give OATP इनहिबिटर। क्या देंगे, OATP इनहिबिटर। ये क्या करेगा, इससे क्या नहीं होगा, यूरिक एसिड जो वापस कहां जा रहा है, वापस कहां आ रहा है, ब्लड में, वो कहां चला जाएगा, यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगा। सो विल गिव OATP इनहिबिटर। इसके वजह से क्या होगा, वी विल एक्सक्रीट uric acid in the urine, and this process is called as, what is this process called, or the drug is called uricose uric drug। क्या है ड्रग का नाम, uricose uric drug। I hope you have understood guys। देखो purine is a protein, you know uric acid is the breakdown product of purines, so purine forms hypoxanthine, hypoxanthine is xanthine। Now in the liver there is enzyme called xanthine oxidase which forms uric acid। ठीक है, अब इस यूरिक एसिड को क्या होना है, इट हैज टू बी एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। ठीक है, अभी एक्सक्रीट कैसे होगा यूरिन में, बाय इनहिबिटिंग OATP दैट इज ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जो उल्टा काम करता था, वो यूरिक एसिड को वापस ब्लड में ले लेता है एसिडिटी में। बट हमारा इनहिबिटेड ड्रग्स जो हम लोग देंगे वो क्या करेगा, इट विल इनहिबिट द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिक एसिड फ्रॉम द किडनी टू द ब्लड। सो वो ब्लड से वापस किडनी में भेज देगा एंड यूरिक एसिड गेट्स एक्सक्रीटेड। तो सच टाइप ऑफ ड्रग व्हिच एक्सक्रीट द यूरिक एसिड इन द यूरिन इज कॉल्ड यूरिकोज यूरिक ड्रग। तो ये हमारा पहला ऑप्शन था। सेकंड ऑप्शन था कि हम लोग थ्रू यूरिक एसिड ऑक्सीडेज के थ्रू उसको लीस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, दैट इज एलेंटोइन। बट दिस इज मेनली इन बर्ड्स, ये बर्ड्स में होता है ये इंसान, नॉट इन ह्यूमन बीइंग्स। सो अभी है ना, ये स्टेप हट गया, अभी आगे देखेंगे, देयर इज अ सस्पेंस। ठीक है, ओके। तो ये दो, एक चीज हो गया। और एक चीज हम लोग क्या कर सकते हैं गाइस, कि हम लोग यूरिक एसिड को ब्लड में कम कर दें, हम लोग इस एंजाइम को ही क्या कर दें, इनहिबिट कर दें। तो xanthine ऑक्सीडेज क्या दे दें, इनहिबिटर दे दें। समझ रहे हो? सो इन क्रोनिक गाउट वी हैव टू डिक्रीज गाइस यूरिक एसिड इन दी ब्लड। तो पहला ऑप्शन क्या है गाइस, कि xanthine ऑक्सीडेज इनहिबिटर दे दो, कि भाई यूरिक एसिड फॉर्म ही नहीं होगा, तो आगे कुछ जो मसला है वही नहीं होगा, पहला। सेकेंड ऑप्शन, अगर यूरिक एसिड फॉर्म हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यूरिक एसिड को एक्सक्रीट कर सकते हैं यूरिन में बाय इनहिबिटिंग दिस एंड दिस ट्रांसपोर्टर दैट इज OATP व्हिच इज आल्सो कॉल्ड UAT दैट इज यूरिक एसिड ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर दे सकते हैं। थर्ड ऑप्शन ये है, अब ये है ह्यूमन बीइंग में कि हमने सिंथेटिक कुछ लाया है, देखते हैं। नेचुरली ह्यूमन बीइंग में दिस एंजाइम इज नॉट देयर व्हिच विल फॉर्म एलेंटोइन। ठीक है, बट कुछ हुआ है ड्रग्स में, कुछ फेरबदल, देखते हैं क्या है। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट सब हेडिंग इज द ड्रग्स फॉर क्रोनिक गाउट। ठीक, सो गिव द हेडिंग गाइस, गिव द हेडिंग ड्रग्स फॉर क्रोनिक गाउट। तो पहला ऑप्शन क्या बोला था हमने गाइस, कि वी शुड इनहिबिट xanthine oxidase। सो xanthine oxidase inhibitor, xanthine oxidase inhibitor, तो यही दे दो। तो हमारा क्या फॉर्म नहीं होगा गाइस, yes will not get uric acid only, तो मसला ही नहीं, यूरिक एसिड बनेगा ही नहीं, तो ब्लड में बढ़ेगा ही नहीं। यस, सेकंड क्लास व्हाट वी हैव सेड कि भाई यूरिक एसिड जो बना है उसको क्या कर दो, एक्सक्रीट कर दो इन द यूरिन, एंड द ड्रग इज कॉल्ड यूरिकोज यूरिक ड्रग। एंड थर्ड मैंने गाइस बोला, देखो ब्लड बर्ड्स में देयर इज अ एंजाइम यूरिक एसिड ऑक्सीडेज, जो यूरिक एसिड को किस में कन्वर्ट करता है, एलेंटोइन में। अब साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, they have discovered a synthetic enzyme which will convert the uric acid into allantoin, so it increases the metabolism of what uric acid. So by increasing metabolism of uric acid,
So this is the third drug which will increase the metabolism of uric acid and it will form allantoin. ठीक है? So xanthine oxidase inhibitor में आते हैं हम लोग guys. So which are the drugs? Just remember FAO. Now FAO is what? It is febuxostat, febuxostat हम लोग बोलते हैं, allopurinol and oxypurinol. ठीक है, अंडरस्टूड. सो दिस इज xanthine oxidase inhibitor. अब यूरिकोसिल ड्रग, जस्ट रिमेंबर गाइस, बिलो पॉवर्टी लाइन, BPL. B stands for benz bromarone. P stands for, it is, we can say pyrazone, that is sulfpyrazone. Lesinurad. And also P, एक most important drug is P में probenacid. ठीक है, it is probenacid. इन लोग क्या करते हैं guys? किसको इनहिबिट करेंगे? OATP को. So they are nothing but they are organic anion transport inhibitor या uric acid transporter inhibitor. UAT1 inhibitor and OATP inhibitor. ठीक है, अंडरस्टूड. ओके, अब इन दो ड्रग हमारे क्या करते हैं? मेटाबॉलिज्म ऑफ यूरिक एसिड को कैसे बढ़ाएंगे? बाय द एंजाइम कॉल्ड यूरिकेस ऑक्सीडेज एंड द ड्रग्स आर buricase. Uricase is nothing but it is uric acid oxidase and second is pegloticase. So third class of drug is the one which increases the metabolism of uric acid. ठीक है, by the enzyme called uric acid oxidase. ठीक है, understood. So these are the three class of chronic gout drug. पहला जो xanthine oxidase inhibitor हो, second uricosuric drug हो, third which increases metabolism of uric acid. ठीक है, ओके. तो हम लोग अब एक एक ड्रग पे आते हैं, मेनली एक क्लास पे आते हैं, अलग अलग क्लास पे आएंगे एंड विल डू द ड्रग. ओके गाइस, अब हम लोग देख रहे हैं xanthine oxidase inhibitor. ये क्या करता है? इट इनहिबिट्स xanthine से यूरिक एसिड जो होने का स्टेप है. वी नो xanthine टू यूरिक एसिड किसकी वजह से होता है? इट इज बिकॉज ऑफ xanthine oxidase. तो ये क्या कर देता है? इसी स्टेप को क्या कर देता है ये ड्रग? इट विल इनहिबिट दिस स्टेप. एंड याद रखो, दिस टू ड्रग दैट इज ऑल allopurinol and oxypurinol और competitive inhibitor. ठीक है, of xanthine oxidase. But this is non-competitive inhibitor. Just remember this. This is very, very important. Okay? ठीक है? Understood? Okay. Now the most preferred drug out of all these three, or we can say the drug of choice for chronic gout. Sorry, the drug of choice for chronic gout out of these three is yes, correct. It is allopurinol, and the dose is 100 mg. Please remember the drug of choice for chronic gout, guys, is allopurinol, and the dose is 100 mg. और कितना डोज है? 100 mg. ठीक है, ओके. अब इंडिकेशन क्या क्या है एलोपुरिनॉल के, कहां यूज होता है? सो पहला इंडिकेशन क्या है गाइस? इट इज क्रॉनिक गाउट. ठीक है, अब ध्यान से सुनो, क्रॉनिक गाउट कहां हो सकता है? इट कैन बी ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, ड्रग इंड्यूस्ड गाउट, ठीक है. सो क्रोनिक गाउट कहां हुआ? ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, ड्रग इंड्यूस्ड गाउट. सेकेंड इंडिकेशन, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर काला आजार. ठीक है, काला आजार जहां में बॉडी पूरी काली हो जाती थी, सुना होगा आपने काला आजार. एंड उसका दूसरा नाम क्या है? लिशमेनियासिस.
It was used for Kala Azar, but now it is not used. It is only the drug of choice for chronic gout, and this is due to ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम. ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया. अगर किसी पेशेंट को कैंसर हुआ है, हमने कीमोथेरेपी दी, तो क्या होगा, कैंसर ब्रेकडाउन होगा, एंड कैंसर ब्रेकडाउन होगा तो क्या रिलीज होगा, प्रोटीन. एंड प्रोटीन मतलब यूरिक एसिड के आएंगे, यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ने लग जाएंगे, तो हमें उसको कम करना है. सो द प्रेफर्ड ड्रग इज, यस, इट इज एलोप्यूरिनॉल. दैट इज ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम. ड्रग इंड्यूस्ड गाउट क्या होता है, बिकॉज ऑफ drugs, because of like aspirin. Aspirin also causes what, drug induced gout. क्या करता है एस्पिरिन, यूरिक एसिड को बढ़ा देता है, सो हाइपरयूरिसीमिया कर देता है. तो ड्रग के वजह से जब गाउट होने लग जाए तभी भी ड्रग ऑफ चॉइस कौन है गाइस, इट इज एलोप्यूरिनॉल. अंडरस्टूड. एंड द सेकंड इंडिकेशन इट इज कालाजार. इट वाज यूज्ड बट अब यूज नहीं होता है. ठीक है, अंडरस्टूड. ओके, अब हम लोग आ जाते हैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ एलोप्यूरिनॉल गाइस. उसके क्या एडवर्स इफेक्ट है. अब पहला वेरी कॉमन, देखो नाम में उसका एडवर्स इफेक्ट है, इट इज प्यूरिन. करेक्ट, प्यूरिन डिराइव्ड फ्रॉम दैट इज प्रोटीन. अब प्रोटीन मोस्टली बहुत सारे लोगों के लिए एलर्जी कॉज कर देता है, सो इट कॉजेस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. सो फर्स्ट एडवर्स इफेक्ट इज इट कॉजेस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. अंडरस्टूड. सेकंड इफेक्ट इज, yes, it is hepatotoxic. It is hepatotoxic drug. तो ये दो मेजर एडवर्स इफेक्ट हैं किसके गाइस, ऑफ एलोप्यूरिनॉल. इट इज हाइपरसेंसिटिविटी, इट कॉजेस हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन, सॉरी, एंड इट इज हेपाटोटॉक्सिक ड्रग. तो ये दो एडवर्स इफेक्ट है. आप ध्यान से सुनना, अगर भाई पेशेंट हाइपरसेंसिटिव है किससे, एलोप्यूरिनॉल से, तो ये ड्रग ऑफ चॉइस था. तो हम लोग तब क्या देंगे, इफ द पेशेंट इज हाइपरसेंसिटिव to allopurinol, then the drug of choice is febuxostat. क्या है guys, it is febuxostat. So कब देंगे febuxostat as a drug of choice, if the individual is hyper or allergic to allopurinol, then the drug of choice is febuxostat and its dose is 40 mg. What is the dose? Then 40 mg. Understood? Okay. Guys, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था that allopurinol is also a drug of choice for drug induced gout. तो हमको पता होना चाहिए which are the drug which causes gout. Yes. So next heading is drug induced gout or the drug which causes. इस पे short note आ सकता है guys. So what is a mnemonic to remember the drug which causes gout or which induces gout, means which increases uric acid in the blood? Just remember can't leap. Can't leap. Now C stands for cyclosporin, A stands for aspirin, N stands for niacin, T stands for thiazides, that is diuretic, they are all diuretics. This is Lasix, it is also diuretic, it is furosemide. E stands for ethambutol, P stands and P for pyrazinamide. Please remember this guys. So ये जो वो ड्रग हैं जो क्या करते हैं, they will cause increased uric acid in the blood and it can lead to gout. So the mnemonic is can't leap. Cyclosporin, aspirin, niacin और thiazide diuretic है, Lasix diuretic है, ethambutol antitubercular alcohol and pyrazinamide is also antitubercular drug. So ये drug they causes gout. Okay, understood? ठीक. तो लास्ट चीज गाइस आपको एलोप्यूरिनॉल के बारे में पता होना चाहिए that एलोप्यूरिनॉल is enzyme inhibitor. It is enzyme inhibitor. It mainly inhibits cytochrome P4. ठीक है, तो इसका मतलब क्या, अगर ये किसी, फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन एलोप्यूरिनॉल विथ, फॉर एग्जाम्पल थियोफाइलिन के साथ मैंने दिया, तो क्या होगा गाइस, थियोफाइलिन इज मेटाबोलाइज्ड बाय साइटोक्रोम एंजाइम,
नाउ अब ये क्या है हमारा एलोप्यूरिनॉल, इट इज दी साइटोक्रोम इनहिबिटर। तो क्या करेगा वो, इसकी मेटाबॉलिज्म को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका मेटाबॉलिज्म होगा ही नहीं। सो ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन क्या होने लगेगा, थियोफाइलिन का बढ़ने लगेगा। सो मींस थियोफाइलिन टॉक्सिसिटी हो जाएगी। एंड द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इन थियोफाइलिन टॉक्सिसिटी इन द पेशेंट इज कन्वर्जन। द पेशेंट विल प्रेजेंट विद conversion. So please remember, we should not give allopurinol with theophylline because allopurinol is a enzyme inhibitor. So allopurinol के drug interaction भी बहुत सारे हैं। एक और drug interaction बहुत common है, it is allopurinol with a anti-cancer drug and the anti-cancer drug is 6-mercaptopurine. 6-mercaptopurine, उसका दूसरा नाम is azathioprine. क्या नाम है guys? Yes, azathioprine. So next drug interaction very important of allopurinol is with an anti-cancer drug. This is a anti-cancer drug. Yes. And the drug is 6-mercaptopurine or azathioprine. अब क्या होता है guys? 6-mercaptopurine is normally metabolized by xanthine oxidase into the inactive substrate and it is eliminated out of the body. But हमारा allopurinol, अगर मैंने समझो पेशेंट को गाउट है और allopurinol चल रहा है, पेशेंट को कैंसर की ये चल रहा है, so what will happen? Now this allopurinol क्या करता है, allopurinol किस एंजाइम को इनहिबिट करता है, वो इसी को इनहिबिट कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, 6-mercaptopurine का मेटाबॉलिज्म इस एंजाइम की वजह से हो रहा है। तो allopurinol will inhibit this enzyme. So what will happen, 6-mercaptopurine का भी concentration blood में बढ़ने लगेगा, so it will cause 6-mercaptopurine की toxicity. तो anti-cancer drugs की toxicity बढ़ने लग जाएगी बॉडी में, so it will cause the anti-cancer side effects of the anti-cancer drug. Hence allopurinol is very very important drug for short note, long question, viva and also for a drug interaction. इतने सारे इसके drug interaction दिख रहे हैं आपको, ठीक है। So this is all about allopurinol. Okay. So हमारा पहला क्लास क्या था, xanthine oxidase inhibitor हो गया। सेकेंड क्लास पे आ जाते हैं, क्या है सेकेंड क्लास गाइस? Yes sir, it is the one which increases uric acid excretion in the urine. So uricose uric drug. यूरिकोस यूरिक ड्रग, उसमें कौन कौन से आते हैं, क्या निमोनिक बताया था, बीपीएल, बी फॉर बेंजब्रोमेरोन, पी फॉर इट इज probenecid. The most common used uricose uric is probenecid. Then we have pyrazone and the most common is sulfipyrazone. Now याद रखो pyrazone आपने कहाँ नाम सुना है guys? हमने जस्ट सर NSAID से क्लासिफिकेशन में देखा था pyrazone, एंड याद रखो pyrazone इज अ NSAID. सो अरे NSAID तो एक्यूट गाउट में यूज होता है, बट अब ये pyrazone ऐसा इकलौता NSAID है जो इट इज यूज्ड बोथ इन एक्यूट गाउट एंड क्रोनिक गाउट. So only NSAID which is used both in acute and chronic gout is pyrazone, that is sulfipyrazone. ठीक है, and L stands for guys lesinurad. ठीक है, अब ये गाइस क्या करते हैं, यूरिकोस यूरिक ड्रग, इट इनहिबिट्स अ ट्रांसपोर्टर कॉल्ड OATP और UAT1, that is organic anion or cation transport protein. एंड इसका क्या ना फुल फॉर्म है, यूरिक एसिड ट्रांसपोर्टर 1. दोनों एक ही हैं, प्लीज रिमेंबर. सो इनको जो इनहिबिट कर दे वो कौन है, यूरिकोस यूरिक ड्रग. सो यूरिकोस यूरिक ड्रग क्या करेंगे गाइस, इट इज एक्सक्रीटिंग द यूरिक एसिड इन द यूरिन. दिस इज अ नॉर्मल पेशेंट. नॉर्मल पेशेंट है मतलब नॉर्मल किडनी फंक्शन जिसकी हो रही है, उसमें तो एक ड्रग ठीक है, ठीक से काम करेगा. बट एग्जांपल फॉर एग्जांपल इफ इट इज अ रीनल फेलियर पेशेंट, तो क्या होगा, this drug will not be able to excrete more of uric acid because खुद उसकी किडनी डैमेज है, ठीक है. hence uricose uric drugs are not safe in renal patient, not safe in renal patient. Please remember, this is very very important.
सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है गाइस यूरिकोस यूरिक ड्रग का? भाई यूरिकोस यूरिक ड्रग क्या कर रहे हैं? यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करवा रहे हैं। सो उनका एक मेजर एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है? इट कैन प्रेसिपिटेट यूरिक एसिड स्टोन आल्सो इन एनी पार्ट ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट। तो आप क्या एडवाइस करोगे? व्हेन द पेशेंट इज टेकिंग यूरिकोस यूरिक ड्रग, ऑलवेज से द पेशेंट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर along with the drug. So जब ड्रग लो यूरिकोस यूरिक ड्रग तो बहुत ज्यादा पानी पियो, because this drug can precipitate uric acid stone anywhere in the urinary tract. Understood? So ठीक, so पहला disadvantage is that it is not safe in renal patients. Second, it can precipitate renal stone. Sorry, it can precipitate uric acid stone. So hence, patient should be advised to drink plenty of water. Stone. It can precipitate uric acid stone. Understood? ठीक है? Okay. Coming to the third drug, guys, it is one which increases uric acid metabolism. By which enzyme, guys? Uric acid oxidase. So हमने चुरा लिया है उसको बर्ड से, इस एंजाइम को ह्यूमन में यूज किया जा रहा है। कौन से दो ड्रग थे जो यूरिक एसिड की मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देते हैं? इट इज रासब्यूरिकेस एंड पेग्लोटिकेस। ठीक है, अब गाइस प्लीज रिमेंबर दिस बोथ ड्रग्स, दे आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रेजिस्टेंट chronic gout. Resistant chronic gout means they are resistant to, कौन सा है drug of choice? Normally it is allopurinol. So if the patient is resistant to allopurinol, then the drug of choice is the rasburicase and the pegloticase. Understood? ये याद रखना, ठीक है। अब second point, second very important point about this class of drug is that, समझो गाइस, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम है। कौन सा? ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। प्लीज रिमेंबर, हमको पता है ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम क्या होता है। द ट्यूमर इज ब्रोकन डाउन, ट्यूमर विल रिलीज यूरिक एसिड विल गो एंड डिपॉजिट इन द जॉइंट्स, ठीक है, और ब्लड में भी बढ़ने लगेगा, ठीक है, समझ रहे हो। अब हमें ऐसा कोई ड्रग देना है जो बहुत जल्दी क्या करे? यूरिक एसिड को नीचे कर दे। तो हमारे पास भाई एलोपिरिनॉल भी है, दैट इज xanthine oxidase inhibitor भी है। We also have यूरिकोस यूरिक ड्रग and we also have the drug which increases uric acid metabolism। तो इन तीनों में से सबसे जल्दी कौन यूरिक एसिड के लेवल को कम करेगा गाइस? ध्यान से सुनो, एक बार मतलब कैंसर का सेल ब्रेक हो गया, क्या रिलीज हुआ? यूरिक एसिड। तो बहुत सारे यूरिक एसिड आएंगे। तो xanthine oxidase क्या करेगा? xanthine oxidase यूरिक एसिड बनने नहीं देगा, बट जो ऑलरेडी यूरिक एसिड पूरे छा गए हैं पूरे बॉडी में, उनको तो कुछ नहीं कर सकता। सिमिलरली यूरिकोस यूरिक ड्रग भाई इतना ज्यादा तो वो नहीं कर सकता कि इतने सारे यूरिक एसिड को निकाल सके। सो इट इज ओनली एंड ओनली दिस टू ड्रग which has the capacity to increase the uric acid metabolism। वो मैक्सिमम यूरिक एसिड को लीस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे इन एलेंटोइन। तो hence we can say they are, that is this two drug, that is the drug which increases the uric acid metabolism, are the fastest acting, or we can say it is the fastest urate lowering drug. Please remember, this can be MCQ. So which is the fastest urate lowering drug? It is the pegloticase and rasburicase are the fastest urate lowering drug. Understood? Okay, now one more thing I want to say, pegloticase, ठीक है, पेग, यहां पे पेग लगा है, पेग का फुल फॉर्म इज पॉली इथिलीन glycol. So it is the longer acting which is mainly used to do or to decrease the uric acid level in the fastest, we can say, मतलब in the fastest way and in the shortest time. Understood? So this is all about the drug which increases uric acid metabolism. अब एक last question guys मुझे आपसे पूछना है
कि मुझे बताओ कि जो क्रोनिक गाउट में हम लोग ड्रग यूज कर रहे हैं, 3 क्लास के ड्रग यूज किए, कैन वी यूज दिस ड्रग इन एक्यूट गाउट? हाँ या ना? Yes or no? No, we can't use the drugs of chronic gout in acute gout. Because guys, acute gout का main treatment क्या है? To decrease pain and inflammation. So पहले pain inflammation कम करना है. But chronic gout का main काम क्या है? To decrease uric acid in blood. So please remember, we cannot use the drugs of chronic gout in acute gout. Please remember this. Okay, understood? ठीक है? Okay, one more thing. Now this drug, they are given through IV route. They are mainly given through IV route. Not like xanthine oxidase inhibitor, allopurinol, febuxostat. They are mainly given through oral route, but these drugs are given through IV route. Understood? ठीक है? Okay. So with this, I am completing the topic of gout. Hope you have understood it very easily in a simplified way with the mnemonics. So with this, I am closing the lecture of gout. So we'll meet in the next lecture. So keep studying, keep loving. Thank you so much, guys.